तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लावारिस वालिदैन की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक अहम और समाजी तौर पर असरअंगेज इक़दाम की तजवीज़ पेश की है। वजीर आला ने एक नई कमेटी की तश्कील का ऐलान किया, जिसका काम एक ऐसा कानून का मुसव्वदा तैयार करना है जो उन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% कटौती लाजमी करार देगा जो अपने वालिदैन को नजरअंदाज करते हुए पाए जाएंगे। तजवीज़ के मुताबिक ये किट्टी हुई रकम बराह रास्त वालिदैन के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। वजीर आला रेड्डी ने जोर दिया कि इस इक़दाम को सज़ा नहीं बल्कि वालिदैन के लिए इंसाफ के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने इन कुर्बानियों को उजागर किया जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए देते हैं और इस बात पर जोर दिया कि यह कानून उन कुर्बानियों का एतराफ़ और कर्ज की अदायगी का एक जरिया है। ये पहल रियासत के मुलाजमीन ने समाजी जिम्मेदारी और बुजुर्गों की देखभाल के एहसास को तक़वियत देने की एक मजबूत कोशिश की अक्कासी करती है। మీరు అంకితమవుతారని నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉన్నది। మీ అందరి పట్ల నాకు నమ్మకం ఉన్నది। మీరందరూ పెద్ద ఎత్తున చప్పట్లు కొట్టి నాకు మాట ఇవ్వాల్సిందిగా చప్పట్లే కదా కొట్టేసినాం, రేపటి నుండి సార్ చూడబోతారా అని మీరు అనుకుంటారేమో। తప్పకుండా చూస్తా। ఎవరన్నా తల్లిదండ్రులను చూసుకోకపోతే మీ జీతంలో 10-15% కోత చేసి మీ తల్లిదండ్రుల ఖాతాలు వేస్తా। చట్టమే తెస్తున్నా, ఆ చట్టాన్ని మీతోనే రాపిస్తా। తల్లిదండ్రులను చూసుకోని వాళ్ళ జీతాల నుంచి 10 నుంచి 15% జీతంలో కోత విధించి మొదటి నాడు మీ అకౌంట్లో ఎట్లయితే జీతం పడుతుందో మీ జీతంలో నుంచి ఆడబిడ్డ అయినా మగబిడ్డ అయినా ఆ జీతం తల్లిదండ్రుల ఖాతాలకు పోయేటట్టు ఖాతా తెరిచి మీ జీతాలు మాత్రం అక్కడికి బదిలీ చేస్తా। అది చట్టం చేస్తా, ఆ చట్టం మీతోనే రాపిస్తా। సెక్రటేరియట్లకు ఎవరు వస్తున్నారు? రామకృష్ణారావు గారు, మనం ఒక కమిటీ వేయండి కొత్త ఆఫీసర్లతో ఆ చట్టం రాపిచ్చే దాంట్లో। మళ్ళీ వాళ్ళు మాకేం తెలియదు అందులో ఏముందో అంటారు। కాబట్టి ఇందులో నుంచి సెక్రటేరియట్కి వచ్చే ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతోనే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్తో ఒక కమిటీ వేసి బేసిక్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళతోనే తయారు చేయించండి। అప్పుడు మేం చేసిన చట్టం ఖచ్చితంగా అమలు జరుగుతుందని వాళ్ళకి నమ్మకం వస్తుంది। అదే విధంగా बीआरएस के कारगुजार सदर के रामाराव KTR ने सनम चिरो के इलाके में इंतजामिया की जानिब से की गई हालिया मिसमारी मुहिम से मुतासिरा खानदानों को एक अहम यकीन दहानी कराई है। उन्होंने रिहायशियों के खिलाफ किए गए इस इक़दाम की सख्त मजम्मत की जिनके घरों को मुबैना तौर पर हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल करते हुए गिराया गया था। KTR ने अवामी तौर पर ऐलान किया कि एक बार जब BRS पार्टी इक़्तिदार में वापस आएगी तो उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि तमाम मुतासिरा अफराद को नए मकानात तामीर करके दिए जाएं। ये बयान मौजूदा हुकूमत की आबी ज़खायर के किनारों पर गैर कानूनी तमीरात को गिराने की पॉलिसी पर एक वाज़ेह सियासी वदा और तनकीद है। उनका ये अज़्म उन गरीब और बेघर लोगों की हालतजार को दूर करना है जिन्होंने झेल की मुकम्मल टैंक की हद FTL में बेदखली मुहिम के बाद अपनी पनागाहें खो दे। వాళ్ళకు పేదలంటే లేదు। ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే మనమేమనుకున్నాం, ఇల్లు కట్టిస్తారేమో అనుకున్నాం। ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఇల్లు గులగొట్టుడే ఉన్నది మొత్తం కార్యక్రమం। హైదరాబాద్లో ఒక్క ఇటుక పెట్టింది లేదు, ఒక్క ఇల్లు కట్టింది లేదు 2 ఏళ్లలో। ఒక్క మనిషికి, ఒక పేద మనిషికి సాయం చేసింది లేదు, ఒక ఫ్రీ బస్సు తప్ప। ఇక ఫ్రీ బస్సు వల్ల లాభమా నష్టమా మీకేరక నేను చెప్పా, కానీ మొత్తం అందరిని ఆగం చేసిండ్రు। ఇలా రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటూ ఆగం, బిజినెస్ చేసుకుంటూ లాగం, ఆటో నడుపుకుంటూ లాగం, మొత్తం కరెంటు బిల్లులు మళ్ళీ వస్తున్నాయి। మళ్ళా మంచినీళ్ళు కూడా ఫ్రీగా కేసీఆర్ గారు ఇస్తే అది కూడా తీసి పారేసిండ్రు। ఆగమాగం పేదల బతుకులు చేసి ఇవాళ మొత్తం అన్యాయం చేస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం। అందుకే మీకు ధైర్యం చెప్పడానికి, ఒకవేళ ఈ ప్రభుత్వం బుద్ధి తెచ్చుకొని మీకు న్యాయం చేయకపోతే మీ అందరికి మేము మాటిస్తున్నాం, ఇంకో 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం తప్పకుండా వస్తుంది। ముమ్మాటికి మీ ఒక్కొక్కరి పేరు ఇక్కడ రాపిచ్చిపోతా నేను కృష్ణారావు గారికి, మన శేర్లింగంపల్లి నాయకులకు నేను చెప్పి మొత్తం రాసుకొని నా దగ్గర కూడా పెట్టుకుంటా। ప్రతి ఒక్కరికి బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు ఇచ్చి మళ్ళీ మీకు గౌరవంగా ఇళ్లలో తీసుకుపోయే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఇలా కేవలం దీపావళి మీ పిల్లలతోని కొద్దిసేపు, ఎందుకంటే కొన్ని పటాకులు వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళతో పాటు కొద్దిసేపు ఉండి మీకు కూడా కొంత సాయం చేసి పోదామన్న ఆలోచనతోనే ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం। మీ అందరూ కూడా దయచేసి ధైర్యంగా ఉండాలి। తప్పకుండా ఇంకొక 2 ఏళ్ళే, ఎక్కువ రోజులు ఏం లేదు। దీపావళి అంటేనే నరకాసుర వధ జరిగినాక జరుపుకునే పండుగ। ఈ దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో, పేదవాడి కడుపు కొట్టిన ప్రభుత్వం, నరకాసురుడు లాంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని
తప్పకుండా ఇంటికి పంపే రోజులు మీ అందరి కన్నీళ్లలో ఈ ప్రభుత్వం కొట్టుకపోతే सोमवार 20 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर भारत राष्ट्र समिति के MLA हरीश राव ने हैदराबाद की तारीखी चारमीनार के करीब वाक़ मशहूर भगिए लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में पूजा करने के बाद राव ने मीडिया से गुफ्तगू की और लोगों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हैदराबाद और तेलंगाना की मुनफरिद सकाफती बनावट पर बात की। BRS रहनुमा ने इस बात पर रोशनी डाली कि चारमीनार के बिल्कुल साथ देवी का मंदिर मौजूद होना ही खित्ते के गैर मामूली सकाफती वर्से का सबूत है। उन्होंने खास तौर पर इलाके की पायदार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तारीफ की, ये कहते हुए कि हमारी सकाफत काबिल जिक्र है क्योंकि ये चारमीनार के अंदर देवी का मंदिर होने जैसी रवायात को बरकरार रखती है, जहां हिंदू मुसलमानों का एहतराम करते हैं और मुसलमान हिंदुओं का एहतराम करते हैं। राव ने अपनी बात का इख्तिताम शहर की तरक्की और तेलंगाना के अवाम की खुशहाली और फलाह व बहबूद के लिए दुआ करते हुए किया। BRS के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर हरीश राव ने अपने सियासी हरीफों पर सख्त तनकीद करते हुए एक असातिरी राकुशस और मौजूदा सियासत के दरमियान एक तल्ख मवाजना पेश किया। उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार रिवायती तौर पर इसलिए मनाया जाता है ताकि इस शैतान नरकस्वर के खात्मे की याद मनाई जा सके जिसने लोगों को परेशान कर रखा था। हरीश राव ने इसके बाद एक मवाजना करते हुए कहा कि आज तेलंगाना के अवाम को एक नया नरकस्वर नाया का सामना है जो क्लियरेंस मुहिम्मात के बहाने उनके घरों को गिराने की धमकियां देकर शहरियों को खौफजदा कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन धमकियों से पैदा होने वाली मौजूदा खौफ की कैफियत अवाम पर एक बड़ा बोझ है। हरीश राव ने अपनी पुरजोश तकरीर का इख्तिताम इस बात से किया कि तेलंगाना के लोगों के लिए हकीकी और मुबारक दिवाली तभी आएगी जब इस नए नरकस्वर की अजियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और वो अपनी पनाहगाह खोने के मुस्तकिल खौफ के बगैर जिंदगी गुजार सकेंगे। నిజంగా ఈ దీపావళి మీ అందరం దీపావళి ఎందుకు జరుపుకుంటాం? ఆనాడు నరకాసురుడు అనే రాక్షసుడు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే ఆ నరకాసురుడిని వధించితే ఆ నరకాసురుడి పీడపోయిందని అందరూ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇవాళ మనకు నయా నరకాసురుడు వచ్చాడు రేవంత్ రెడ్డి, భయపెడతా ఉన్నాడు ప్రజల్ని, ఇల్లు మూలగొడతా అని హైదరాబాద్ ఈ నయా నరకాసురుడు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాడు, గోస పెడతా ఉన్నాడు. ఈ నరకాసురుడి పీడ విరగడైనప్పుడే తెలంగాణ ప్రజలకు నిజమైన దీపావళి. ముఖ్యంగా మా మూసీ పరివాహక ప్రాంతం వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా మరి అదే కోరుకుంటుంటారు మీరు. కానీ మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు అండగా ఉంటది, మేము ఎల్లవేళలా మీకు అండగా ఉంటాం, మీ తెరువు ఎవరు వచ్చే ప్రశ్నే లేదు। कांग्रेस के MLC बालमोरी वेंकट ने BRS पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त इंतबाह जारी किया है जिसमें हमलों की धमकी दी गई है। ये धमकी BRS के सोशल मीडिया हैंडल्स से वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने वाली काबिल एतराज पोस्टों के जवाब में दी गई है। वेंकट ने मुतालबा किया कि BRS के कारगुजार सदर के रामा राव के TR उन पोस्टों पर फौरी और अवामी तौर पर मुआफी मांगे, बसूरत दीगर कांग्रेस के कारकुनान जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन पोस्टों से तेलंगाना भर के नौजवानों और तलबा के जज्बात को ठेस पहुंची है। वेंकट ने मजीद खबरदार किया कि रियासत के तलबा और नौजवान सड़कों पर आकर BRS के रहनुमाओं और कारकुनों पर हमले करेंगे। उन पोस्टों के मवाद का बरा रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए MLC ने के TR को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया, क्योंकि उनके बकौल ये मुतनाज़ा पोस्टर्स रियासत की नौजवान नस्ल के जज्बात को बुरी तरह मुतासिर कर चुकी है। BRS पार्टी सोशल मीडिया हैंडल्स लो అడ్డగోలుగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ పేరుట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి, మంత్రుల గురించి, ఉన్నత అధికారుల గురించి నోటికి వచ్చినట్టు పెట్టడం జరుగుతుంది। నిన్న కూడా BRS పార్టీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్లో వాళ్ళు ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఒక పోస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఎన్నో సందర్భాల్లో దీని గురించి మేము పోలీస్ శాఖ కూడా కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి పైన పెట్టిన పోస్టు ద్వారా
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న యువత అందరూ కూడా విద్యార్థులు యువకులందరూ కూడా వాళ్ళ మనోభావాలను దెబ్బతీసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడిన మాటల పట్ల అందరూ కూడా ఆవేశంతో రోడ్లెక్కే పరిస్థితి ఉంది. సో పోలీస్ అధికారులకి ఈరోజు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నిజామాబాద్ ఏదైతే జిల్లా పరిధిలో జిల్లా అధ్యక్షులు అదేవిధంగా జిల్లా పరిధిలో ఉన్న నాయకులందరితో కలిసి నిజామాబాద్ సిపి గారికి ఒక కంప్లైంట్ కూడా ఈ రోజు మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి పైన పోస్టులు పెట్టిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ దీనికి సంపూర్ణ బాధ్యత ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు పైన కఠినమైన సెక్షన్స్ పెట్టి ఆయన పైన చర్యలు తీసుకోవాలి. తీసుకోకపోతే ఆ పోస్ట్ పైన రియాక్ట్ కాకపోతే తెలంగాణలో యువకులని ఆపే పరిస్థితి ఉండదు. పెద్ద ఎత్తున యువకులు విద్యార్థులు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళన చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. కేటీఆర్ పైన కూడా దీని బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పకపోతే वरंगल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान कई मशहूर शख्सियात को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में एक साबिक रुकन असेंबली, मौजूदा कारपोरेशन मेंबर और कई ताजिर शामिल हैं। टास्क फोर्स पुलिस ने किटोडा इलाके में अचानक कार्रवाई की। ये जुआ साबिक MLA दूनीपौदी रमेश बाबू के मकान में खेला जा रहा था। हुक्मरान जमात के कारपोरेटर बसोराजू कुमार भी पकड़े गए अफराद में शामिल हैं। पुलिस ने कल 13 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 530 नकद रकम, ताश के पते, टोकन्स और 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए। हुक्काम को शुबा है कि ये गिरोह बड़े पैमाने पर बाकायदगी से जुआ खेल रहा था। मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इंतबादिया के गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारा तो होना वो ना करेगा। काकीनाडा के मिकलारियन ग्राउंड में आर्जी तौर पर लगाई गई पटाखों की दुकानों पर एक कशीदा झगड़ा पेश आया है। ये तनाज़ा दुकान के मालिक और एक गाहक के दरमियान आतिशबाजी की खरीदारी के मामले पर शुरू हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पटाखों की कीमत मिकदार मेयार से मुताल्लिक किसी मसले पर दोनों फरीकैन में शदीद गर्मागर्मी हो गई। ये झगड़ा जल्द ही एक हंगामा खेज तसादुम में बदल गया, जिसने इस मसरूफ बाजार में दीगर गाहकों और दुकानदारों की तवज्जो मबजूल कराई। अगरचे झगड़े की असल वजह के बारे में वाज़ेह तफसीलात दस्तयाब नहीं है, लेकिन इस वाक़ये ने आतिशगीर मवाद वाली दुकानों के करीब आर्जी तौर पर अफरातफरी की कैफियत पैदा कर दी। इंतजामिया को इस तरह के मामूली तनाज़ात को मजीद संगीन सिक्योरिटी मसाइल बनने से रोकने के लिए मुदाखलत करनी पड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के अम्बेडकर कोनासीमा जिला में फूड पॉइजनिंग के एक वाकये के बाद फूड सेफ्टी हुक्काम ने सख्त कार्रवाई की है, जहां 20 से ज्यादा अफराद बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुए। ये वाकया अंबाजी पीटा मंडल के माचावरम गांव में पेश आया, जब मुतासरीन ने एक मकामी होटल से आलूदा नाश्ता टिफिन खाया था। हुक्काम ने अंबाजी पीटा में वाक़े पिटभी रामिया टिफिन होटल पर तवज्जो मरकूज की, जहां कुछ दिन पहले उन अफराद ने नाश्ता किया था। आलूदा नाश्ता खाने के बाद मुतासरीन को कै और इसहाल की शदीद शिकायत हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो ज़ेर इलाज है। खाने में मिलावट के इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फूड सेफ्टी हुक्काम ने होटल को फौरी तौर पर सील कर दिया है। ये अक़दाम जाहिर करता है कि हुक्काम खुराक के हिफाजती मेयार की खिलाफ वर्जी को कितनी अहमियत देते हैं, जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए।
विशाखापट्टनम के करमनपालम इलाके में वाक़ राजभोगुम होटल में आग लगने का एक बड़ा हादसा पेश आया है। अचानक शोले बुलंद हुए और देखते ही देखते होटल के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला अपनी गाड़ियों के साथ फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गया। अमले ने फौरन ही आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि शदीद शोलों पर काबू पाया जा सके और आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। होटल से निकलने वाला धुएं का गहरा बादल दूर से दिखाई दे रहा था। फिलहाल फायर फाइटर्स बड़ी तंदही से आग बुझाने में मसरूफ हैं और सूरत-ए-हाल को मुकम्मल तौर पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे आग लगने की वजूहात की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। हैदराबाद के रामंथापुर इलाके में त्यौहार के माहौल पर एक गहरा उलमिया छा गया। एक शख्स जिसकी शनाख्त नरसिम्हा के नाम से हुई है, एक आम त्यौहार की तैयारी की रस्म के दौरान एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गया। वो एक ऊंची जगह से आम के पत्ते, जो सजावटी मेहराबों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये हादसा इस वक्त पेश आया जब नरसिम्हा तवाजुन खो बैठा और 2 मंजिला इमारत की छत से नीचे गिर गया। ये गिरावट बहुत शदीद थी और वो मोहलिक जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। त्यौहार के मुबारक सीजन के दौरान नरसिम्हा की ये अचानक और गैर मुतवक्के मौत रामंथापुर में उनके खानदान और मकामी बरादरी के लिए गहरे गम का बाइस बनी है। NTR जिला के नरवरू इलाके में 3 तलबा के लापता होने से सनसनी फैल गई। ये तलबा डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रोकालिम स्कूल के हैं। 2 भाई रुत ओंकसाई मणिकानत्था और चंद्रशेखर गोलुमंडला गांव के रहने वाले हैं, जो 6ठी और 7वें जमात में पढ़ते हैं। तीसरा तालिब इल्म साई गणेश रामचंद्रपुरम गांव से ताल्लुक रखता है और 9वीं जमात में ज़ेरे तालीम है। ये तीनों शाम से लापता हैं। असातिज़ा ने तलाश शुरू की मगर वो वापस नहीं आए। बाद में स्कूल इंतजामिया ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। वालिदैन ने बच्चों के लापता होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने असातिज़ा पर गफलत बरतने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने तीनों तलबा की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। మా పిల్లోళ్ళు ఏడు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడి నుంచి ఎవరికి బాధ్యత లేదు, ఎవరికి బాధ్యత అనేది లేదు. నా పిల్లోళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఎత్తుక్കൊണ്ട് వచ్చా నా పిల్లోళ్ళు ఇప్పటికీ దొరకలా. ఏడున్నారో కూడా తెలియదు, ఏడున్నారో తెలియదు. నా పిల్లలు బయటికి వెళ్ళిపోయారు. ఏడికి పోయారు? వీళ్ళే పంపించారు. వీళ్ళే పంపించింది వీళ్ళే పంపించింది. మొన్న చిన్న విషయం, ఒక హిందీ మేడం అనే ఆవిడ మా పిల్లోని కొట్టింది. ఎంతలా వాత పడ్డది. ఆ మీద నేను చిన్న విషయం చేస్తే నువ్వు వచ్చేదో ఇది చేసు అని చెప్పారు. ఆ రోజు నుంచి నా పిల్లలు కనపట్ల. ఆ రోజు నుంచి కాదులే, నేను తెల్లారి వచ్చా. తెల్లారి మళ్ళీ వచ్చారు, మళ్ళీ కనపడ్డారు. మళ్ళీ తర్వాత నుంచి పిల్లలు ఈ రోజు లేరు. 3 సంవత్సరాలు నా పిల్లలు ఎడు చదివేది. 3 సంవత్సరాలు ఇవాళ పిల్లలు ఇద్దరు లేడారా? నా పిల్లలు 7ంటికి పోయారు భయ్యా. ఇందాక ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసినప్పటినే వచ్చి टोनी मंडल के ईरा कुनेरू के करीब एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त शदीद हंगामा खड़ा हो गया जब पेट्रोल की बजाय गाड़ियों में पानी भर दिया गया। मुताद्दिद मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी मालिकान को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब पंप से पेट्रोल भरवाने के फौरन बाद उनकी गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होना बंद हो गए। वो रास्ते में ही रुक गईं। गाड़ियों के मालिकान ने जब पेट्रोल के पाइप खोल कर देखे तो उनमें से सिर्फ पानी निकल रहा था। ये देखकर वो हैरान और परेशान रह गए।
इस धोखाधड़ी और लापरवाही की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी गाड़ियां ठीक करवाने के लिए ले जाना पड़ा। इस वाकये ने पेट्रोल पंप की इंतजामिया पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं और शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। గడ పగిలినట్టుండే పోకనే ఉంటది చూడండి మరి పర్లేదు నీళ్ళు అన్ని నీళ్ళే పెట్రోల్ ఏమీ లేదు ఇందులో ఎవడో వచ్చేదాకా అలా కూర్చుంటారేంటి 10 రూపాయలు పోలేవంటే కొత్త మనతో పెట్రోల్ ఎన్ని గంటలాగా మేము 8 గంటల నుంచి మనం వచ్చి వంటగది తుని చంద్రానికి చెప్పొస్తాడు కారు వేసుకుని ముందే వ్యక్తికి రావాలి కదా ముందైనా ముందే వచ్చిన తర్వాత కానీ వస్తాడు అటు చెప్పి అక్కడ సమాజ చెప్పలేదు జనాలకి చెప్పగలదా ఇంట్లో ఒప్పుకుంటాం అక్కడ ఏం చేస్తాం ఇంకో పడుతున్నాం కదా पेडुपली जिला के सुल्तानाबाद में गधी के दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है। छोटे बड़े सभी लोग इसे सेहत के लिए फायदेमंद समझकर पी रहे हैं। मंचरियाल की मीना नामी खातून सुल्तानाबाद में गधी का दूध फरोख्त कर रही हैं। उनका कहना है कि ये दूध दमा, खांसी और खर्राटे जैसे अमराज के लिए मुअस्सिर इलाज है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए खास तौर पर ये दूध खरीद रहे हैं ताकि उनकी कुत मुदाफियत बढ़े। सर्दियों में जब सांस की बीमारियां बढ़ जाती है तो इस दूध की मांग भी बढ़ जाती है। एक छोटे गिलास की कीमत 300 रुपए और बड़े गिलास की कीमत 400 रुपए है। मीना के मुताबिक गधी का दूध कई बीमारियों के लिए कुदरती दवा है। कई इलाकों में अब डेयरी फार्म में गिधियां पालने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ये दूध अब ब्रोन मुख भी बरामद किया जा रहा है। బస్ దగ్గుకు దమ్ముకు సంబంధించిన అటకల పొడి బసవము ఎమ్లి గోర్జం కూడా ఎత్తాం. అమ్మాయిలుగా పని చేస్తుంది మంచిగా ఉంటారు పిల్లగాండ్లు అన్నం ఎక్కువ తింటారు. వెళ్తాగా ముక్కదైనది మింగని మింగు మింగు ఉంచదు డాడా. పక్కమ్మ పైసలు ఇచ్చినట్టు తెలియాలి కదా. पार्वतीपुरम मानीम जिला के पाचीपेंटा मंडल में घाट रोड पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया है। एक इंडियन गैस टैंकर बेकाबू होकर उलट गया जिससे रास्ते में शदीद खलल पड़ा। ये गैस टैंकर विशाखापट्टनम से झारखंड की तरफ जा रहा था कि घाट रोड के पुरखतर हिस्से पर यह हादसा पेश आया। शुबा है कि हादसे की वजह ड्राइवर का इस भारी गाड़ी से कंट्रोल खो देना है। हादसे की इत्तला मिलते ही हुक्काम को फौरी तौर पर जाए वकुआ पर तलब किया गया। अगरचे ड्राइवर और क्लीनर की हालत के बारे में फौरी तौर पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की गईं, लेकिन उल्टा हुआ गैस टैंकर हिफाजती खतरा पैदा कर रहा है, जिसके पेश नज़र मकामी पुलिस और हंगामी टीमों की तरफ से तेज रफ्तार हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं।
हैदराबाद में एक बड़ी वारदात टल गई जब एक कार के नीचे आतिशबाजी के पटाखे फट गए। ये वाकया एक रिहायशी इलाके में त्यौहार के मौके पर पेश आया। पटाखों की चिंगारियां कार के निचले हिस्से तक पहुंच गईं। चंद ही लम्हों में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। पुलिस को शुबा है कि करीबी बच्चे पटाखे जला रहे थे। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि आतिशबाजी के दौरान एहतियात बरतें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की एक और मुमकिना साजिश का इंकिशाफ हुआ है। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने बताया कि ट्रंप के हिफाजती अमले ने पाम बीच बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब एक दरख्त पर एक मशकूक बुलंद ढांचा दरियाफ्त किया, जिसे शिकारी स्टैंड मुमकिना स्नाइपर घोंसला करार दिया गया। ये ढांचा इस रनवे के करीब वाक़ था जहां एयरफोर्स वन उतरता है। ये स्टैंड पहले से की गई हिफाजती जांच के दौरान मिला और मुबैना तौर पर सदर ट्रंप के जहाज में सवार होने की जगह पर वाज़े तौर पर नजर रखे हुए था। इस दरियाफ्त से मालूम होता है कि बंदूक बरदारों की जानिब से ट्रंप पर इस वक्त फायरिंग करने का इंतजाम किया गया था जब वो तैयारे की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इस मशकूक स्टैंड को पाए जाने के बाद सिक्योरिटी टीम ने फौरी तौर पर सदर के जहाज तक जाने का रास्ता तब्दील कर दिया और उन्हें जहाज की पिछली जानिब से अंदर भेजा गया ताकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने तस्दीक की है कि FBI ने अब तहकीकात की क़ियादत संभाल ली है और शवाहिद जमा करने और इस मशकूक इंतजाम से जुड़े किसी भी फर्द की शनाख्त के लिए सेल फोन तज्जियाती सलाहियतों को इस्तेमाल कर रही है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब दुबई से आने वाला एक कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। ये वाकया लैंडिंग के दौरान पेश आया जब बोइंग 747 माल बरदार जहाज रनवे को उबूर करके समंदर के पानियों में जुज़वी तौर पर डूब गया और उससे कबल एक ज़मीनी सर्विस गाड़ी से टकरा गया। इस टक्कर के नतीजे में गाड़ी में मौजूद 2 ग्राउंड स्टाफ की अलमनाक मौत की तस्दीक की गई है। ताहम इमदादी अमला ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तैयारे में मौजूद 4 अमले के अरकान को जिंदा बचा लिया और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रनवे से फिसलने की वजह की तफ्तीश जारी है, जिसकी वजह से एशिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट का मुतासरा रनवे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बागपत पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स मामूल के मुताबिक अपनी कुर्सियों पर बैठे थे और गुपशप में मसरूफ थे। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार तेजी से स्टेशन के अहाते में दाखिल हुआ, जिससे वहां मौजूद एहलकारों में उलझन पैदा हो गई। जब बाइकर ने अपना हेलमेट उतारा तो ये उलझन फौरी तौर पर शदीद हैरत में बदल गई। वो सादा लिबास में मलबूस SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सूरज कुमार आर थे, जो एक अचानक मुआयना सरप्राइज चेक करने आए थे। अपने सीनियर ऑफिसर को पहचानते ही घबराए हुए इंस्पेक्टर राणा ने फौरी तौर पर सैल्यूट किया, जबकि दीगर अफसरान अपनी कुर्सियों से अलिफाचेल कर उनकी तरफ दौड़े। SP ने फौरी तौर पर एक बड़ी कोताही की निशानदेही करते हुए गरज कर कहा, मार्केट में कोई अफसर तैनात नहीं है, दिवाली का वक्त है। उन्होंने खास तौर पर थाने के दाखिली रास्ते पर गफलत को नोट करते हुए एक एहलकार को हिदायत दी कि इस बैरियर पर कोई नहीं है, तुम्हारा बैरियर खिल गया है, जिस पर फौरन अमल किया गया। इस अचानक छापे ने उनकी यौमिया सिक्योरिटी गफलत और ड्यूटी पर लापरवाही को नुमायां किया, खास तौर पर त्योहारों के मौसम में मार्केटों में पुलिस की मौजूदगी की शदीद जरूरत के पेश नजर। कोई नहीं है, बजट खुल गया तुम्हारा, लगा दो। सभी सर्राफे की दुकान पे एक